नमस्कार, मैं प्रभाती बसंतराज। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल, हर पल आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, जिसमें एक जिम्मेदार राजनीतिक नेता जनता के प्रति अपनी जवाबदेही रखता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करने और पारदर्शिता बनाए रखने का जरिया है। नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने चुनावी धोखाधड़ी यानी वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह से सबूतों के साथ चुनाव आयोग की गैर पारदर्शिता को लोकतंत्र पर हमला बताया। सर इस तरफ सर आपने प्रूफ तो आप लोग सामने रख रहे हैं और एक पूरी डिटेल आप ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो आप लोगों के पास रास्ता क्या है? इस प्रूफ को लेके आप ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पूरा इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो चुका है। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है, और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनके फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स, उनके फेक एड्रेसेस। पीटीआई संदीप चोपड़ा जी, माइक। राहुल जी, आपने कहा कि election fraud is taking place across the country, and this is just an example in one assembly constituency. Now you said this is like an atom bomb, and it has come just a day after Nagasaki. Was just 80 years ago on previous day. So how are you going to tackle this, and whether you're considering boycotting polls in the coming times, as one of your key allies has suggested? We are saying, हम कह रहे हैं कि if the election commission now does not give us electronic voter data, not only of current election but of the last 10-15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the election commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are. The data is showing they are. They should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper. 6 months. It's taken us 6 months to do this, because they give us data like that. Right? So, we have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. Let us see it, let us check it. I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, doesn't exist. What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. If this is true, now the election commission is supposed to make sure that elections take place. We have shown, the team has shown without any doubt that they have not done their job in one seat in Karnataka. And the people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the election commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this.
Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. Rahul Gautam, India Today. Mr. Gandhi, you've been raising voter list manipulation first in Maharashtra, now in Karnataka. You've got figures also. I want to understand, where does electronic voting machines stand in the scheme of things? Are they also part of this Look, I'm not subversion or going rigging? to, see, I'm not going to go into conjecture. There is something called voter addition. We have only shown voter addition. There is also something called राहुल गांधी ने voter कहा कि यह subtraction. पूरा सिस्टम चोरी के मॉडल पर आधारित है। उन्होंने वादा किया कि 6 महीने के भीतर निर्णायक सबूत पेश करेंगे। साथ ही उन्होंने तथाकथित गुजरात मॉडल को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, असली मॉडल है वोट चोरी का मॉडल। यह प्रेस वार्ता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा से जुड़ी है, जो इन दिनों बिहार में चल रही है। इस अभियान का मकसद है जनता को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को उजागर करना। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुजरात में गुमनाम दलों को RS 300 करोड़ रुपए के बेहिसाब चंदे मिले हैं, जबकि उनके खर्च बेहद कम दिखाए गए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये पैसा गया कहां? विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी की रणनीति दोहरी है, जनमत जुटाना, जनता के बीच वोट चोरी का मुद्दा बड़ा बनाकर बिहार चुनाव में माहौल तैयार करना, संस्थागत चुनौती, चुनाव आयोग पर दबाव डालकर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करना। लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये दावे सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश है। तो सवाल यही है, क्या राहुल गांधी सचमुच वोट चोरी का सबूत सामने लाएंगे, या फिर यह बयानबाजी बिहार चुनाव से पहले की राजनीतिक रणनीति भर है? आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल, सच के साथ हर पल आपके साथ।